हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों की जो है एथिक्स की मास्टर क्लास चल रही हैं और अभी तक टोटल 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो 12th क्लास है। और जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम कोई भी कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद यूपीएससी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो हम डिस्कस करते हैं। कल का जो हमारा लेक्चर था, बेसिकली दैट फोकस अपॉन जनरल concept of justice, principle of justice we have discussed, like equality principle, and also we discuss about differential principle and method to achieve fair justice, that is reflective equilibrium, the state of mind, logical reasoning behind that, differ person to person. And also we have discussed about veil of ignorance, that whenever you are taking any decision, then you have to ignore caste, religion, race, gender about that person, or whenever you are taking decision, so your decision should be rational thought. You should not discriminate on the basis of religion, race, caste, etc. So today we are going to practice UPSC previous year question 2016, that is kindly note in your notebook. And sorry from my side, because due to construction going on in my neighborhood, so there is voice is coming, but you totally focus and concentrate on the video. So I am dictating you, just note down, analyze John Roll concept, analyze John Roll concept of social justice in Indian context, यानी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जॉन रॉल का जो कंसेप्ट है सोशल जस्टिस का, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 का। तो सबसे पहले इसका आंसर हम लिखेंगे। इस तरीके से हम इंट्रोडक्शन लिखें, जो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। तो आप लिखेंगे एक इंट्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट कोटेशन। तो कोटेशन आप रट लेंगे, मैं रटवाऊँगा आपको शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू भी और अभी भी। तो सबसे पहले जैसे कि कल डिस्कस किया था, एज वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, दैट जस्टिस इज सम ऑफ ऑल वर्च्यू। दिस इज द कोट गिवन बाय जस्टिस ए, काइंडली नोट इन योर नोटबुक, जस्टिस इज सम ऑफ all virtue. So this is quote given by John Rawls. So basically this is our introduction. You can say justice is sum of all virtue, and virtue we have already discussed that Socrates, Plato, Aristotle also talk about virtue, that is critical thinking, logical reasoning, moral reasoning, and adherence to universal principles like selflessness, truthfulness, compassion, sympathy, empathy, servitude, that all come under virtue. So justice is sum of all virtue. In this way we will introduce. Then you have to analyze the concept of social justice. So basically social justice, you will write the social justice help in achieving a society where downtrodden or say vulnerable community get access to justice. Now we will discuss how social justice concept of John Rawls in India context is valid. So we will make one chart like this, and let's say SC/ST, scheduled caste, scheduled tribe, how scheduled caste, scheduled tribe can get access to social justice. So we have write SC/ST and make one arrow. So here you can write Prevention of Atrocity Act 1989. It is a cognizable offence and you will be punished for it if you practice untouchability, or if you denied access to land of SC/ST belonging to them, or you forcefully tell to them कि give this land to me by any means. So
Prevention of Atrocity Act 1989 provides for maximum 6 month punishment. Also, fine is also there, and it is a cognizable offence. You will not get any bail. So that is for SC/ST. Second point, you will note about women. How women can get social justice. So as you know, कि RG Kar Medical College, so there was one female doctor and brutally she was raped. So how women can get justice? So for that there is now there is a punishment, life imprisonment also is there. Above 16-year women, if gang rape is there, so life imprisonment. So life imprisonment if gang rape case happen. Also maternity benefit act, those women are working, so maternity benefit act up to 26 week 26 सप्ताह तक जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत जो है वुमेन अपने चाइल्ड की केयर कर सकती हैं. तो वुमेन के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे जो है विधानसभा में लोकसभा में रिजर्वेशन है वुमेन के लिए. तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम यू कैन नोट. पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आप लिखेंगे कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट ये वाला. उसके बाद आप चाइल्ड के लिए आप लिख सकते हैं कि हेल्थ एजुकेशन वी आर प्रमोटिंग हाउ टू गेट सोशल जस्टिस. माल न्यूट्रिशन कैन बी टैकल थ्रू आंगनबाड़ी where milk, egg and dal protein focus of government, so that child wasting means the weight of children is not according to its age, and stunting cases can also be reduced, like height is not growing of children. So that is as per report National Family Health Survey 5. Kindly note in and make 11 star. According to National Family Health Survey, child wasting cases seen around 20%, and child stunting case also seen around 18%. So we have to tackle this, and that can be tackled through Anganwadi. Focus on nutrition food like millets and dal, jo bhi dal, that can also be given. So that, and now we will discuss about transgender community. So now district magistrate will issue a certificate for transgender community, and Transgender Protection Act 2019 provide for punishment if any person harassed to transgender community. So transgender you can note. So SC/ST, women, child, person with disability, transgender, all these we have noticed. And OBC, for OBC you can write National Commission for Backward Class is there for its welfare. So these are the measures, and apart from it you can also mention from economic survey से भी आप mention कर सकते हैं. That is like PM Jan Dhan 54 crore accounts are opened, and 2.5 crore houses are built under Pradhan Mantri Awas Yojana. That you can mention. PM Shri School 14,500 स्कूल PM Shri के तहत बनाएगा, जिससे कि एजुकेशन प्रमोट होगा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में अचीव हो जाएगा. LPG गैस सिलेंडर वुमेन के लिए प्रोवाइड किए, उससे क्या होगा कि जो रूरल में जो रूरल हेल्थ का जो इशू रहता है वुमेन का, दैट कैन बी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, दैट कैन बी सॉल्व LPG से. और कहीं कहीं जो प्रदूषण है एयर में वो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है. सो फ्लोरा फौना भी कंजर्व रहेगा. एंड ओवरऑल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2026 ग्लासगो समिट का जो गोल है, या COP27 नेट जीरो इमिशन बाय 2070 दैट वी हैव टू अचीव. सो ऑल दिस पॉइंट्स वी कैन इनकॉर्पोरेट. नाउ क्वेश्चन में बोला है कि एनालाइज, हमको एनालाइज करना है. तो ये तो हमने सब पॉजिटिव एस्पेक्ट पे फोकस करा. अब कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट, और वैसे हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस की भी बात कर सकते हैं कि समस्त जो भी कम्युनिटी है उनको किस तरीके से जस्टिस, जिसकी बात की जो रोल ने. और एक बात की है रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, उनको भी हम डिस्कस कर सकते हैं. सो रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एक लाइन में लिखे हैं आप कि व्हेन एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर नीडेड एंड थ्रू टैक्सेशन फ्रॉम रिच पीपल से हम जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, सेस जैसा कि आप जानते हैं, सरचार्ज आप जानते होंगे टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगता है. तो कहीं कहीं रिच पीपल से जो भी अमाउंट लेके हम पुअर की वेलफेयर में जो लगा रहे हैं, सो दैट प्रिंसिपल आता है रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के तहत. सो रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये दो प्रिंसिपल हैं जस्टिस के जो जॉन रॉल ने दिए हैं. सो इनको हम मेंशन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई ऑक्सफैम रिपोर्ट के इसके अगर हमको एनालाइज करना क्वेश्चन में, तो ये तो हमने पॉजिटिव पॉइंट बताए. अब नेगेटिव भी हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि थेसिस एंटीथेसिस होता है ना, वैसे ही क्योंकि एनालाइज है, क्रिटिकली एनालाइज कहें या एनालाइज कहें.
तो पॉजिटिव पॉइंट बताएं, अब नेगेटिव बताएंगे। आप लिखें, नोट करें। एज पर ऑक्सफैम रिपोर्ट 53% ऑफ रिसोर्सेज वेल्थ आर इन हैंड्स ऑफ रिच पीपल। फिर आगे नोट करें कि 80 करोड़ फैमिली आर टेकिंग राशन फ्रॉम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस शॉप से आज भी 80 करोड़ जनता जो है राशन ले रही है, व्हीट राइस ले रही है 3 या 2 किलोग्राम पर रुपीज़ की जो भी हिसाब से। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत हम अचीव करेंगे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल हम अचीव करेंगे, बट हम अचीव कर तो रहे हैं लेकिन लोगों का वेलफेयर कहाँ हो रहा है। मतलब देखा जाए तो 80% जनता इंडिया में जो है वो 2.5 to 3 2.5 से 3 हेक्टेयर लैंड एक्वायर करे है मार्जिनल फार्मर। अब फार्मर के जब क्रॉप ही ग्रो नहीं होगी तो क्रॉप प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगा, और जब क्रॉप प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी तो जो हमारी फूड सप्लाई चेन का डिसरप्शन होगा और कहीं ना कहीं जो है हमारी फूड की कमी हो जाएगी, और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का सपना हम देख रहे हैं कि जिससे एक्सपोर्ट को हम बूस्ट कर पाएंगे वो भी कहीं ना कहीं हमारा अधूरा रह जाएगा। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो क्रॉप है उसका जो फूड है वो ट्रांसपोर्टेशन से रूरल से अर्बन एरिया तक पहुंच पाए। जब अर्बन एरिया तक पहुंच पाएगा तभी वो आगे प्रोसेस होकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में पैकेट्स के रूप में हम उसको कर सकते हैं और फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। बट सबसे पहले जो मार्जिनल फार्मर है 2.5 to 3 हेक्टेयर जो होल्ड कर रहे हैं क्रॉप, उनके वेलफेयर के बारे में हमें सोचना है। सो ये मिसिंग है अभी। क्यों? क्योंकि 80% फार्मर वो है जो 2.5 to 3 हेक्टेयर लैंड है उनके पास, और उनके पास सर्टिफिकेट वगैरह भी सारे अभी उनके नहीं बने, आधार कार्ड किसी का नहीं है, किसी के ज़मीन के सारे दस्तावेज नहीं है। सो उसके लिए सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो है ब्यूरोक्रेट्स का इंटरवेंशन होना चाहिए। जैसे चौपाल का भी कंसेप्ट है और जनता दरबार लगता है, उस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। जो सिटीजन चार्टर है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि जनता से अच्छे तरीके से हम कनेक्ट करें। जो माई बाप एटीट्यूड है ब्यूरोक्रेट्स का और एलाइट एटीट्यूड है दैट इज प्रिवलेंट फ्रॉम ब्रिटिश टाइम, सो उसको हमें कर्व करने की ज़रूरत है। और आप नोट कर लेंगे 11 स्टार मार्क करके कि जो अभी का हमारा ब्यूरोक्रेट्स का जो रिफॉर्म चल रहा है दैट इज कर्मयोगी, जिसमेम कहीं ना कहीं जो है पीपल से डायरेक्ट कांटेक्ट करके और उनकी ग्रीवांसेस को किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। सो आवर फोकस इज ऑन दैट। सो व्हेन दैट विल बी इनकॉर्पोरेटेड सो इट विल बी वेलफेयर फॉर पीपल। सो तभी हम जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सोशल जस्टिस जॉन रॉल का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं आज भी वैलिड है, और सोशल जस्टिस हम जो है सोसाइटी में अचीव कर सकते हैं। सो नेगेटिव पॉइंट्स हमको ये लिखना है कि भाई माल न्यूट्रिशन की समस्या है चाइल्ड के लिए, वुमेन के साथ जैसे गैंगरेप का जो केस था आजीकार मेडिकल कॉलेज का, या निर्भया गैंगरेप का केस हम देखें, कहीं ना कहीं जो वुमेन पुलिस थाना वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया में कम है। और फार्मर का मैंने आपको इशू बताया कि भाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उतना अच्छे तरीके से अचीव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं 80% फार्मर जो है मार्जिनल फार्मर 2.5-3 हेक्टेयर होल्ड कर रहे हैं, उनकी क्रॉप की प्रॉस्पेरिटी नहीं बढ़ेगी तो कहीं सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा, एक्सपोर्ट हमारा बूस्ट नहीं होगा, और इकोनॉमी ओवरऑल जो है हम सारा कनेक्ट कर रहे हैं। इस कनेक्ट से ही आपको जो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एग्जाम में जब आप आंसर लिखेंगे यूपीएससी मेंस में तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा दिलाएगी। तो इस तरीके से जो भी हम नेगेटिव है वो भी हम बता सकते हैं कि विकसित भारत को अचीव करने के लिए अभी कहीं ना कहीं हमको जो एक्सपोर्ट को बूस्ट करना होगा। हम बता सकते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ कहीं ना कहीं 17-18% है, उसको हमें बूस्टअप करना है। ठीक है कि उसके लिए हमें लेबर इंटेंसिव जो है स्किल उनको प्रोवाइड करना है, अभी कहीं ना कहीं स्किल नहीं है, और उसके लिए हमें हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस करना है। जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें जो है पीपल टू टीचर रेशियो बहुत कम है, जो भी टीचर वगैरह वो अच्छे से वहाँ जाते नहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लैकुना है गवर्नमेंट के स्कूल में, ठीक है, तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए जो भी है एसडीएम है डीएम है वो जाएँ विजिट करें स्कूल, वहाँ पर कैसा एजुकेशन दिया जा रहा है उसके बारे में देखें, तभी वो पीपल टू टीचर रेशियो को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हेल्थ में के लिए हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँ, डीएम एसपी वहाँ देखें कि भाई डॉक्टर सही से जो है ट्रीटमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमको फोकस करना है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो भी हेल्थ केयर उसको हमें इम्प्रूव करना है। आयुष्मान भारत के तहत जो भी 5 लाख रुपए का बेनिफिट है वो प्रॉपरली डाउन ट्रोडन वल्नरेबल सेक्शन तक पहुँच रहा है या नहीं, वो कहीं कहीं लैकुना है, उस पर हमको फोकस करना है। सो ऑल दीज नेगेटिव पॉइंट्स ये भी हम मेंशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बोला एनालाइज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों ही जो है हमें लिखना है। और जैसे कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, देखा जाता है कि भाई लोगों की चप्पल झन जाती हैं, मतलब जाते जाते कहीं ना कहीं न्याय के लिए वो जाते हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केसेस लगे रहते हैं, सालों साल निकल जाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जस्टिस मिल नहीं पाता हमको। सो
ये सबसे बड़ा बात है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, एंड यू कैन नोट कि सनी देओल ने भी जैसे मूवी देयर वाज मूवी कामनी एंड सनी देओल टोल्ड की तारीख पे तारीख आखिर कब तक तारीख. सो इफ द जस्टिस इज डिलेड then it is justice denied. So this concept is also basically we can see. So you can mention also here. So all these point you can club and mention, and in conclusion you can mention if social justice will provide then rule of law, liberty, equality and directive principles of state policy, socio-economic welfare of people, right? So all this can be achieved, and the goal of Viksit Bharat by 2047 can be achieved, and the economy can also be boosted beyond $5 trillion economy. $5 trillion economy भी अचीव हो जाएगी. So इस तरीके से हमने बहुत अच्छे तरीके से कल कंसेप्ट पढ़ा था. आज पूरा जो है आंसर राइटिंग पे हमने फोकस करा, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. कल मिलेंगे एक नए नेक्स्ट कंसेप्ट पे. आप लोगों से बस एक गुजारिश है कि अभी तक टोटल जो है 12 क्लास यानी 12 लेक्चर जो है अपलोड हो चुके हैं एथिक्स के. इन सब के नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए. शॉर्ट नोट्स पे पहले मैंने आपको बताया है, जैसे जस्टिस जॉन रोल का लिखते हैं तो हल्का सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल लिखें, कॉमा लगा के जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस लिखें, रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम, बिल ऑफ इग्नोरेंस और उनकी क्लाइंट की डेफिनेशन. ये सब आपको अच्छे से कर लेना है. कल मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में. बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा. और जैसा कि आप जानते हैं महाकाल कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर IAS IPS में करेंटली एडमिशन चल रहे हैं. दैट इज लोकेटेड 180 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल एंड 20 किलोमीटर फ्रॉम पिपरिया. सो 9340786461 कॉन्टैक्ट नंबर है. जिसको भी एडमिशन लेना है वो कॉन्टैक्ट कर ले. एडमिशन अभी गोइंग ऑन है. 9340786461 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें जिसको भी एडमिशन लेना है. अभी एडमिशन जो है गोइंग ऑन है. और आप देखे रहेंगे हम अच्छे तरीके से पूरा कंसेप्ट एनालाइज करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन एनालाइज करते हैं. सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलेंगे कल जल्दी नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.